Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start with the chapter number 19 and it's about aldehydes and ketones. And before starting this chapter, let me have a look on that. As you can see the picture of elements, and it is showing compound, organic compound. The name is benzaldehyde. It is the main flavor component in almond, and aldehydes and ketones are responsible for the odor and taste of numerous nuts and spices. So this is the general information regarding aldehydes and ketones. First of all, before starting the complete chapter, obviously as always we are doing, we just start with the nomenclature of that part. So the basic thing, the main thing is what is the representation of aldehydes and ketones. So as we all know that in aldehyde, first of all, when we are talking about organic compounds, so we must be having 4 valencies of each carbon. So as you can see, this is the carbon and it is having 4 valencies. So for aldehydes we must be having this part, COH. Fine. So this is the carbonyl group. That carbonyl group is must, and one of the valency of carbonyl must be filled with hydrogen in case of aldehydes. And when it comes to ketones, so बीच में आपके पास carbonyl होता है and both the valency will be satisfied with the alkyl. This is the main difference. This is the representation of aldehyde and this is the representation of ketones, and here I am going to discuss carboxylic acid also. Although this chapter include just aldehyde and ketones, मैं यहाँ पर nomenclature of carboxylic acid भी आपके साथ थोड़ी सी डिस्कस करूँगी. रीज़न वो आगे आपको समझ में आ जाएगा, because aldehyde और carboxylic acids इनकी nomenclature भी they have a same nomenclature. So let me have a look on that part. The carbonyl group, both aldehydes and ketones contain carbonyl functional group. Carbonyl is a carbon atom doubly bonded to an oxygen atom. The structural representation for a carbonyl group is shown, and we know very well that this oxygen contain, we have discussed it so many times, that this oxygen contain 2 of the lone pair and 2 of the bond pairs are bonded with the carbon atom. So this is the story behind that. Okay, compound containing a carbonyl group, the carbon atom of a carbonyl group must form 2 other bonds in addition to the carbon oxygen double bond. अच्छा, ये वो लिखा हुआ है इधर, तो मैं आपको बता देती हूँ कहना क्या चाह रहे हैं. वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक बॉन्ड इन्होंने CO के साथ बताया हुआ है, सो remaining 2 bonds should be satisfied with the any other atom or a group of atom. The nature of these 2 additional bond determine the type of carbonyl containing compound it is, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास क्या उसकी किस तरह से उसकी नेमिंग होगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. ओके, aldehyde and ketone are amongst the first examples of compounds that possesses a CO bond, double bond, and that we have seen oxidation of alcohol section, and we have seen it. This group is also called a carbonyl group, and it is it has a very different chemical properties than a CC double bond in alkenes. Obviously as we can see, यहाँ आपके पास CO bond हो रहा है. alkenes के अंदर तो कार्बन कार्बन double bond, obviously double bond is there, but this bond is bonded with the carbon, and here the bond is formed with the oxygen. So definitely obvious है कि the properties will be changed because oxygen is more electronegative than carbon. So the bond is polar, bond angles are about 120 around, and the carbon atom C. Vesper theory के बारे में बात कर रहे हैं, और इसके अंदर Vesper theory के अंदर main thing is structure के ऊपर बात करते हैं. Okay, so compounds containing carbonyl group, here we have a look on that, and as you can see, this is the first part. This is aldehyde, this is aldehyde functional group, this is attached, this must be present. This is the simplest aldehyde, and if we want to name them, so कीप इन योर माइंड कि फर्स्ट कार्बन पे आपके पास हमेशा ये ग्रुप अटैच होता है, फर्स्ट या लास्ट पे. मीन्स कि दिस एल्डिहाइड ग्रुप कांट बी इंक्लूडेड इन द मिडल ऑफ द चेन. इट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? COOH ग्रुप. मीन्स कि ये COOH ग्रुप भी COOH ग्रुप. अच्छा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन कार्बोक्सिलिक पार्ट ऑल्सो, बट यहाँ मैं इसको दोनों को एक साथ इसलिए समझा रही हूँ ताकि दोनों चीज़ें आपके माइंड में बैठती जाएंगी, ये सेम है. एंड व्हेन इट कम्स टू एल्डिहाइड, सो इट आल्सो मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट कार्बन एंड एट द लास्ट कार्बन. अगर कहीं आपको ये लगे कि ये एल्डिहाइड ग्रुप बीच में आ रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता. द पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है,
and last one, as you can see, this is the structure of बेंजल्डिहाइड. बेंजीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप ये आपके पास लगा हुआ, तो इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं. ठीक है, बेंजीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप, सिंगल कार्बन आपके पास लगा हुआ है. ठीक है. अच्छा, कंपाउंड कंटेनिंग कीटोनिक ग्रुप की बात करेंगे तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ चेंज इन दैट. कार्बोनाइल ग्रुप कंटेन अल्काइल रेडिकल्स ऑन बोथ साइड. दिस इज़ द डिफरेंस. एंड दिस अच्छा, ये एक चीज़ है, मेन चीज़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट. दिस सिंपलेस्ट कीटोन्स जो होते हैं ना, वो एक कार्बन वाले नहीं होंगे ना, उसमें दो कार्बन होगा. सबसे छोटा जो आपके पास कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा इन कीटोन्स, वो 3 कार्बन वाला होगा, सबसे छोटा. बिकॉज वाई इट इज़ सो? बिकॉज वी नीड कार्बोनाइल ग्रुप एंड ऑन द बोथ साइड वी नीड आर ग्रुप. That is the condition for ketones. And when it comes to like this is the condition of ketone ना, कि R CO R होना मस्ट है. इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दोनों साइड पे R ग्रुप मस्ट है. तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2 कार्बन वाला कीटोन हो या 1 कार्बन वाला हो. मस्ट है कि एटलीस्ट 3 वाला होगा. तो ये है सिंपलेस्ट एल्डिहाइड. Oh sorry, I'm not talking about aldehyde, I'm talking about ketones. This is the ketones, fine. So this is the simplest ketone. Next we have next कोई भी आ सकता है. And this is the condition के carbonyl, this ketonic group can be present at the second carbon, at the third carbon. They can't be present at the first and the last. क्योंकि दोनों साइड पे आपके पास आर होना चाहिए. ठीक है, अगर आर नहीं होगा दोनों साइड पे तो नहीं होगा. तो ये सेकंड नंबर से लेके सेकंड लास्ट कार्बन तक के बेतहाशा भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं चेन के अंदर. डाईओन, ट्राईओन करके नाम उनको देते हैं. तो दिस इज़ सो. एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन. एंड व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एक्चुअली हमारे पास है क्या, ये आपके पास साइक्लो हेक्साइल कीटोनिक ग्रुप है. इसको नेमिंग मैं आगे आपको समझाऊंगी कि किस तरह से नेमिंग इसकी दी गई है. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. एंड नाउ कम्स साइक्लिक एल्डिहाइड्स आर नॉट पॉसिबल बिकॉज एक मिनट. Because carbon atom to be part of a ring system, it would be having to form a 2 bonds to ring atom, which would give it a 5 bonds. Unlike aldehydes, ketones can form a cyclic structure. तो ये कह रहे हैं कि एल्डिहाइड नहीं हो सकता बिकॉज ऑब्वियसली चेन के अंदर आपके पास कौन सी चीज़ आ जाएगी. चेन के अंदर आपके पास डबल बॉन्ड जो है वो बीच में अगर आ रहा है तो इन शॉर्ट इस चीज़ को हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे. वहाँ आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी अगर आगे आता है आपके पास. तो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता. लेकिन कीटोन्स जो हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. कीटोन्स साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों बना सकते हैं? बिकॉज आपके पास दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप होता है. इसके अंदर एक साइड पे आपके पास हाइड्रोजन ग्रुप होता है. ये भी एक केस आ सकता है. नाउ लेट वी हैव अ लुक ऑन द एल्डिहाइड एंड कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप्स. एंड साइक्लिक एल्डिहाइड्स आर नॉट पॉसिबल एज वी हैव सीन बिकॉज इन ऑर्डर ऑफ द फॉर द carbonyl group to be a part of the ring structure, 2 bonds to carbon group would be required. Or aldehydes may incorporate ring structure but not be a part of the ring. हाँ, ये यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये बता देती हूँ. कह रहे हैं कि जो आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो यहाँ ऊपर लग सकता है बट रिंग के अंदर नहीं होगा, कहीं पर अटैच नहीं हो सकता. एंड ऑल्सो नॉट द साइक्लिक कीटोन्स आर. और इसके बाद कह रहे हैं कि नोट दैट द साइक्लिक कीटोन्स आर नॉट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेट्रोसाइक्लिक? दैट वी कांट बी हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच. फॉर एग्जाम्पल वी कांट बी हैविंग नाइट्रोजन सल्फर इन कीटोनिक ग्रुप. वी मस्ट बी हैविंग कार्बन के बॉन्ड्स होंगे और बीच में कहीं आपके पास 2 कीटोनिक ग्रुप, जैसे यहाँ पर यू कैन सी ये स्ट्रक्चर है. तो ये हो सकता है, ये स्ट्रक्चर हो सकता है, ये स्ट्रक्चर हो सकता है. एंड दिस इज़ एक्चुअली एल्डिहाइड. एल्डिहाइड चेन के बाहर होगा जो हम लोगों ने अभी बात की है. ठीक है, ओके. ऑन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव जनरल फार्मूलाज. एंड जनरल फार्मूलाज क्या हैं हमारे पास? इट इज़ अ जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड CnH2NO and the homologous series of ketones have a general formula CnH2NO. They both have a same general formula. Next their representation, as we have seen the representation. तो ये अच्छा इनके डिफरेंसेस नहीं आते. these things are important for MCQs part कि जनरल फार्मूलाज क्या होते हैं. आइसोमर्स होते हैं, वो बनाने होते हैं. पीछे हमने देखे हैं आइसोमर्स. तो उनके इनके बिकॉज दे हैव अ सेम मोलिकुलर फार्मूला. सो व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर दैट, सो आप लोग स्ट्रक्चर डिफरेंट तरीके से बना सकते हो दोनों के लिए. ठीक है. ऑन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव ऑन द थर्ड. अच्छा, फर्स्ट ये था फंक्शनल ग्रुप. आपने बताना है जो मेन हम लोग बात कर चुके हैं कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शनल ग्रुप. कार्बोनाइल के साथ कौन सी चीज़ अटैच्ड है. तो ये इसको थर्ड कर लें.
लेकिन ये फर्स्ट नंबर पे आएगा कि कार्बोनाइल के पास साथ इस केस में हाइड्रोजन या एक साइड पे हाइड्रोजन या आर कुछ भी हो सकता है, और ये आपके पास मेन होना चाहिए COH। एंड व्हेन इट कम्स टू कीटोन्स, सो दोनों साइड कार्बोनाइल के दोनों साइड क्या होता है, वी मस्ट बी हैविंग आर ग्रुप एल्काइल रेडिकल। ओके, नेक्स्ट लास्ट में आपने एग्जाम्पल दे देनी है, हाउ डू वी नेम दैम, इनको नाम कैसे देना है। तो दिस इज़ फॉर्मेल्डिहाइड एंड दिस इज़ कीटोन, और ये नाम मैं आपको भी आगे बताऊंगी किस तरह से नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड फर्स्ट। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड के अंदर जब हम लोग IUPAC के रूल्स करते हैं, तो IUPAC के रूल्स आर वेरी सेम, आर वेरी इजी, सिमिलर भी हैं अकॉर्डिंग टू अल्कोहल। एज यू नो, इन अल्कोहल वी एंडेड अप ऑन द ओल। जो भी कार्बन होता था, फॉर एग्जांपल एक कार्बन वाला होता था अल्कोहल, उसको मीथानॉल कहते थे। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू एल्डिहाइड्स, तो आपके पास ये अगर है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ फार्मूला, और ये वाली साइड H से ही सेटिस्फाइड है, लाइक आपका मेन कार्बन एक ही है, सो इट इज़ नेम्ड एज मीथानल, अल पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। क्या नाम होगा इसका, इट इज़ मीथानल, ठीक है। इसी तरह अगर 2 कार्बन वाला है, 2 कार्बन्स वाला कंपाउंड है, तो वो इथेनॉल हो जाएगा। 3 कार्बन, एज यू कैन सी दिस इज़ अ 3 कार्बन चेन, एंड 1 कार्बन मस्ट बी हैविंग, पहले कार्बन पे आपके पास ये होना चाहिए ग्रुप, ये आपके पास लगा हुआ है, और 1 2 3, हाउ मेनी कार्बन्स वी हैव 3 कार्बन, सो इट इज़ अ प्रोपेनल। एंड ब्यूटानल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे अगर, तो ब्यूटानल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, और यहाँ CH2 आ जाएगा कार्बन की वैलेंसी बैलेंस करने के लिए, और इसको हम कह देंगे ब्यूटानल, एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे आप पेंटानल, हेक्सानल, यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दिस इज़ द रूल कि आपने नंबरिंग आपने इसी कार्बन से स्टार्ट करनी होती है जो आपका पहला कार्बन होता है, जिसके साथ आपके पास OH ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। वो ऊपर है H साइड पे, लेकिन बेसिकली COH जिस ग्रुप पे होता है, हम फर्स्ट नंबर उसी कार्बन को देते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अ चेन in the branch in the chain, so we are going to select the longest carbon chain. It's up to you, whatever the chain you are selecting, ऊपर जाएं नीचे जाएं। So this is 1 2 3 4 and 5, and you have a alkyl radical present on the 4th carbon, so obviously the rules are same, it would be 4 methyl, and how many carbons we have 5 carbons, so it is 4 methyl pentanol, fine. And next we have एक लाइन स्ट्रक्चर है, और लाइन स्ट्रक्चर के अंदर जब बात करते हैं तो एज़ वी हैव सीन कि ये उसके अंदर नहीं आ सकता, साइक्लिक फॉर्म में नहीं हो सकता, तो ये ओपन स्ट्रक्चर है, तो इसको नाम कैसे देंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट पार्ट 1, एंड दिस वन इज़ 2, दिस वन इज़ 3, एंड दिस वन इज़ 4, फाइन। और पहला कार्बन आपके पास यही होगा, और इसको हम किस तरह से नाम देंगे, इसको आप एक ब्रांच कंसीडर कर रहे हो, कितने आपके पास ये हैं, जी हमारे पास ये, मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की थी कि ये आपके पास फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, और ये फोर्थ कार्बन है, ठीक है। सो ये इसको अगर आप काउंट करते हैं इस वाली चेन को, तो आपके पास, अच्छा यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि एक तो आप इस चेन को सिलेक्ट कर लो, ये वाली, ठीक है, और जो हमारे पास नाम दिया हुआ है उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये वाली चेन सिलेक्ट की है, और यहाँ पर आपके पास ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं, बिकॉज वैसे आपके पास 4 आते हैं। तो इसको अगर हम देखते हैं तो दिस इज़ 1 2 3 4, एंड दिस वन इज़ 5, एंड आप इसको काउंट कर लें 1, और यहाँ पर ये ग्रुप जो है इसको इथाइल कहेंगे, किस कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे है, तो इसको आप 2 इथाइल, और कार्बन काउंट कर लें कितने हैं, पेंटानल है, तो इसको आपने इस तरह से नाम दिया हुआ है, ठीक है, 2 इथाइल पेंटानल। ओके, सो दैट वाज नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। इसके साथ हम फ्यू मोर एग्जांपल्स जो हैं वो वी विल चेक दिस आउट, एंड दिस वन इज़ मीथानल, एज यू कैन सी दिस। अच्छा, फॉर्मेल्डिहाइड इज़ अ कॉमन नेम, आई एम जस्ट डिस्कसिंग राइट नाउ IUPAC नेम। सो दिस इज़ मीथानल, दिस इज़ इथेनॉल, दिस इज़ प्रोपेनल, नीचे वाले नाम देखिएगा प्लीज़, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, और फिर आपके पास आ रहा है ये नीचे नाम है, और इनको भी देख लेते हैं साथ में। दिस वन इज़ बेंजल्डिहाइड,
ठीक है। बेंजेल्डिहाइड क्यों कह रहे हैं, बेंजीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है तो इसको हम बेंजेल्डिहाइड कहेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हों तो द रूल विल बी सेम। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग हैलोजेंस को पहले नाम देते थे फॉर previously we have studied it. So here again it is going to be repeated. We are going to name bromine first because this is the rule, and it would be 4-bromobenzaldehyde. And next one is we have a hydroxyl group attached, and we will say कि आपके पास है क्या क्या, 4 हाइड्रोक्सी। एंड इसको यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की है 1 2। अच्छा, ये भी कन्फ्यूजन हो सकती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने नंबरिंग, फॉर एग्जांपल हमारे पास OH ग्रुप भी है तो वाई वी आर नॉट स्टार्टिंग विद दैट पार्ट। सो याद रखिए कि जब आपके पास नॉर्मली क्या होता है कि वी गिव प्रेफरेंस टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये इसी से नंबरिंग करते हैं। आपने फिनोल्स के स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, बट देयर इज़ अ क्राइटेरिया व्हेन वी हैव एल्डिहाइड सो वी जस्ट प्रेफर इट, उसके बाद आता है हाइड्रोक्सिल, सही है। सो दैट्स वाई आई एम गिविंग प्रेफरेंस टू द एल्डिहाइड ग्रुप एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पार्ट एंड आई एम जस्ट सेइंग कि ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा 1, और इसको मैं 2, इसको 3rd, इसको 4th कह रही हूँ, ठीक है। तो अगर ये ना होता तो फिर ऑब्वियसली हम इसको फिनोल करके नाम देते, बट यहाँ पर नहीं है तो हम एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देंगे। हमारा मेन कंपोनेंट जो होगा वो एल्डिहाइड होगा, और हाइड्रोक्सिल जो है उसको हम नेमिंग में पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे, ठीक है। सो दीज आर द कहना चाहिए कि आपके पास एल्डिहाइड्स हैं और इनकी नेमिंग है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, बिकॉज आई वॉज सेइंग कि आई एम गोइंग टू डिस्कस द कार्बोक्सिलिक ग्रुप फर्स्ट विद यू। सो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में सिर्फ यहाँ पर आपके पास क्या होता है, OH होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा, ठीक है। सो ये OH लगेगा यहाँ पर, ये जो H है इसके साथ आपने क्या करना है, मैं चेंज कर लूँ कलर, चलो OH हो गया, ठीक है। अब इसके जैसे यहाँ पर मीथानल है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए क्या होगा, इट वुड बी मिथेनोइक एसिड। ये क्या होगा, यहाँ लिख रही हूँ, अगर लग जाता है इथेनोइक, ओइक पे ख़त्म होता है ये क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। बाकी सारे रूल सेम रहेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क सिर्फ अल की जगह ओइक आता है कार्बोक्सिलिक एसिड पे। परेशान नहीं होइएगा, ये मैं फिर रिपीट करूँगी, लेकिन क्योंकि सेम है दैट्स वाई मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ताकि आगे आपके पास रिवीजन रिपीट हो जाएगा। ये इधर आएंगे अगर, तो ये बेंजेल्डिहाइड की जगह क्या हो जाएगा, बेंजोइक। एल्डिहाइड की जगह आपने इसको नाम दे देना है ओइक एसिड, बेंजोइक एसिड। और ये भी यहाँ पर भी रूल सेम रहेगा, प्रेफरेंस कार्बोक्सिलिक एसिड को ही देंगे, और जहाँ एल्डिहाइड है उसकी जगह बस ओइक OIC लगाना है और एसिड का इजाफा करना होता है, ठीक है। नाउ कम्स कॉमन नेम्स फॉर एल्डिहाइड्स। कॉमन नेम्स के लिए जनाब सेम चीज़ रहती है। इसको एक कार्बन वाले को हम यहाँ पर फॉर्मा कहते हैं, द नेम इज़ फॉर्मा, देयर इज़ नो रूल अबाउट दैट, इट्स अ फॉर्मा। 1 कार्बन वाले को फॉर्मेल्डिहाइड, 2 कार्बन वाले एसिटा कहते हैं, एसिड। तो एसिटेल्डिहाइड, एसिड तक है, एल्डिहाइड आ गया, ठीक है। 3 कार्बन वाला इस प्रोपियन भी बोलते हैं इसको, यहाँ तक प्रोपियन एल्डिहाइड। 4 कार्बन वाला होता है ब्यूटायर, ये लिख लीजिएगा खुद ही, मैं यहाँ पर बता रही हूँ, BUTYR, ब्यूटरएल्डिहाइड, दिस इज़ ब्यूटरएल्डिहाइड। 5 कार्बन वाला होता है वेलर, VALERIC, वेलेरिक एसिड। तो सॉरी, वेलेरिल्डिहाइड, वेलेरिक कर दिया मैंने, इसको हम वेलर तक रखेंगे आप, 5 कार्बन वाले, अगर आपके पास चेन आती है तो वेलेरिल्डिहाइड। तो ये क्या होगा, ये आपके पास कॉमन नेम के अंदर नाम होंगे जो 5 नाम है। अच्छा, कॉमन नेमिंग के अंदर ज़्यादा लंबा हम चलते भी नहीं हैं, हम बस इनको इसी तरह से नाम देते हैं, 1-1 2-2 कार्बन के आते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड इज़ अ वेरी कॉमन नेम एंड इट इज़ वाइडली यूज्ड। बाकी ये है कि जो एसिटल्डिहाइड है 2 कार्बन वाला है, तो ये आपने कुछ याद करने होंगे, 5 तक याद कर लें, वेलर तक। 6 वाले को कैप्रो कहते हैं, यहाँ चले 6 वाला भी बता देती हूँ। 6 वाला होगा कैप्रो, 6 कार्बन वाला है, इसके 5 वेलर एंड 6 कैप्रो एल्डिहाइड, फाइन। सो दीज आर द नेम्स फॉर एल्डिहाइड्स। हेयर कम्स you have a activity, you can solve it and you can send it to me and you can ask me. These all are the examples of these are very easy example, you can name it them in a
few minutes, I guess, because it is not that difficult. So आपने इनकी नॉमेनक्लेचर करनी है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स कीजिए और IUPAC नेम्स जो हैं आपने इनको असाइन करने हैं, ठीक है. ऑन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव अ कीटोन्स, nomenclature of ketones. So let's we have a look on that, on the nomenclature of ketones. So as I have told you that for the nomenclature, अच्छा एक पार्ट मैं पीछे बताना आपको भूल गई, जो है नहीं यहाँ पर, वो मैं साथ ही बता देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव अ 2 चेन्स इन द 2 एल्डिहाइड ग्रुप इन द चेन, वी हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. लेट मी हैव अ एम्प्टी जगह, मुझे कुछ नज़र आए तो मैं आपको बताऊँ. ओके, यहाँ लिख देती हूँ. ओके, सी if I have this structure, this is aldehyde, this and this. As you can see, I have 2 aldehyde group in a chain. So how I am going to name it? For example, these valencies are satisfied with the with any of the hydrogen, कह लें कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है. सो हेयर वी हैव 2 aldehyde groups of फॉर IUPAC. अच्छा, कॉमन नेमिंग के अंदर हम ये प्रॉब्लम होती नहीं है, IUPAC की बता रही हूँ. सो ये होगा 1 2 3 4. इट्स अप टू यू फ्रॉम वेयर यू वांट टू गिव इट अ नंबर, बिकॉज फ्रॉम बोथ साइड वी हैव अ फर्स्ट कार्बन ऑन द बोथ साइड. सो एक फर्स्ट होगा, एक लास्ट होगा, ठीक है. अच्छा, नाउ व्हाट वुड बी द नेम? हाउ मेनी कार्बन्स वी हैव? 4 कार्बन्स. सो वी विल सिंपल नेम द chain where we have our aldehyde group. So we will say 1 4 butane diol. As we have seen in the alcoholic group, वहाँ डाईओल करके लिखते थे, यहाँ हमने डाईअल. बस ये चीज़ डिफरेंस है, ये बताना है, ठीक है. एंड अगर आपके पास यहाँ पर कोई अल्काइल रेडिकल आ जाता तो आपने फिर प्रेफरेंस इसी साइड को देनी थी, ठीक है, बिकॉज एल्डिहाइड ग्रुप भी आ गया है. सो दिस इज़ द रूल. जो हम रूल्स यूज़ कर रहे होते हैं वही रूल्स फॉलो करते हैं हम एंड तक, कोई चेंज नहीं होता. फिर आपने इसको नाम पहले देना है. इसको कहाँ पे नाम आ रहा है? इट इज़ 2 मिथाइल. इसका अगर डिफरेंट नाम बता देंगे, सेकंड एग्जांपल आ रही है. सो दिस वन इज़ 2 मिथाइल 1 4 ब्यूटेन डायल. फाइन. सो दैट वॉज द एग्जाम्पल जो सॉरी मिसिंग थी, तो हम लोग वो देख लेते हैं. अब आ जाइए नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स पे. व्हेन इट कम्स टू नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स, सो एज आई हैव सेड, you have to select the longest carbon chain in which your ketonic group is present. On the both side we have what we have, R should be present. So इसका IUPAC नेमिंग देख लें पहले. IUPAC नेमिंग के अंदर क्या होगा कि दिस कार्बन इज विल बी इंक्लूडेड इन द चेन. अलग नहीं होगा, कार्बन है तो कार्बन चेन के अंदर आएगा. नंबरिंग आपने वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से ये ग्रुप को कम नंबर पड़ेगा, ठीक है. अगर यहाँ से देखते हो 1 2 3 4, यहाँ 4th है, और इस साइड से देखें 1 2 3. सो दैट्स वाई इट इज़ 3 हेक्सानोन. कीटोन्स हैं, कीटोन्स ओन्स पे ख़त्म होते हैं, 1 करके लिखते हैं, और बाकी कार्बन का वही नाम रहता है. हेक्सन तक है, ई जो है रिप्लेस होगा ओन से, ठीक है. इसके बाद वी हैव दिस वन. एज यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, एंड इन दिस स्ट्रक्चर वी हैव 1 2 3 4 5 6. सो वी हैव 6 कार्बन की चेन है. हम ये वाली चेन जो है, ऑब्वियसली द रूल, फर्स्ट रूल विल बी सेम, select the longest carbon chain, and once we will select the longest carbon chain, this is going to be our alkyl radical, and this one is 4 methyl 2 hexanone. And why 2 hexanone? Because at the second carbon we have hexane group present. Okay, now the next example. On the next example we have this is the chain, and we are going to select this chain, obviously, because bromine is not going to be included, this oxygen obviously is not going to be included in the chain. So this one is 1 2 3 4, and again the rule, X halogen group is named first, so it is 3 bromo, because यहाँ पर आपके पास थर्ड कार्बन बन रहा है. So that one is 3 bromo 2 butanone, because at the second carbon we have ketone. On the next part we have a cyclic compound, and when it comes to a cyclic compound, so आपकी मर्ज़ी है, आप मतलब इसको, अब ज़ाहिर है फर्स्ट कार्बन तो नहीं मिल सकता है इस कार्बन को, ठीक है, ये फर्स्ट नहीं हो सकता, बिकॉज़ ये बीच में आता है, तो हमें इसको नाम देना ही देना है. अब वो हमारी वो है कि हम कहाँ से उसको नाम दे रहे हैं. सो इन्होंने नाम दिया हुआ है इसको 2 मिथाइल साइक्लोपेंटानोन. सो साइक्लोपेंटानोन किस लिए कह रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली साइक्लिक है, और कितने कार्बन है? 1 2 3
4 5। सो 5 कार्बन है तो इट इज़ ए पेंटानोन। और 2 मिथाइल किस वजह से, बिकॉज़ आपके पास अगर आप कार्बन काउंट करते हैं तो आपके पास इन्होंने इसको जो है वो 2 मिथाइल बोल रहे हैं, ठीक है। सो ये आपके पास साइक्लिक कंपाउंड हो गया। उसके बाद नॉमेनक्लेचर के बाद कीटोन्स की कॉमन नेमिंग आ रही है, कॉमन नेमिंग डायरेक्टली आ रही है। उसके बाद मैं देखती हूँ कुछ और एग्जांपल। अच्छा, नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स के ज़्यादा पार्ट नहीं है, तो आपने आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, तो मैं कॉमन नेमिंग आपको बता देती हूँ। कॉमन नेमिंग के अंदर क्या होता है जनाब, हम लोग इसको नाम किस तरह से देते हैं, अल्काइल्स को नाम देंगे आप जितने भी होंगे, और फिर उसको बीच वाली चीज़ को कीटोन लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ इथाइल 2 कार्बन, दिस इज़ प्रोपाइल 3 कार्बन एंड दिस वन इज़ कीटोन। अल्काइल कीटोन, आपने एक साथ चेन को नाम नहीं देना, आपने दोनों साइड के जो अल्काइल रेडिकल हैं उनको अलग अलग नाम देना है। और उसका भी रूल है, रूल क्या है, अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं, बिकॉज 2 कार्बन्स हैं, ई पहले आता है तो वो इथाइल पहले लिख दिया है, प्रोपाइल बाद में लिख देंगे एंड कीटोन, सही। इसके बाद फिर यहाँ देखिए ये कीटोन अलग हो गया, ये क्या है, ये आपके पास मिथाइल है, ये क्या है, दिस वन इज़ आइसोब्यूटाइल, ठीक है। आइसो अगर याद हो, आइसो क्या होता है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होता है और एक आपके पास चेन होती है, तो दिस वन इज़ मिथाइल आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल अच्छा लिखेंगे पहले, बिकॉज अल्फ़ाबेटिकली आपके पास ब्यूटाइल बी पहले आ रहा है, तो दिस इज़ आइसोब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। ऑन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव दिस पार्ट एंड दिस वन इज़, अगर हम देखते हैं तो ये आ रहा है आपके पास, फाइन। सो दिस वन इज़, इसको आप देख लें कि यहाँ पर आपके पास क्या है, 1 ब्रोमो इथाइल मिथाइल कीटोन। इसको कहेंगे क्या, आपके पास ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ठीक है। और इस कार्बन के साथ आप कह रहे हैं कि आपके पास क्या अटैच है, 1 ब्रोमो है, ठीक है। सो ये 1 कार्बन के साथ आपके पास क्या है, 1 ब्रोमो है, और वो किस मतलब उसको आप इस कार्बन के साथ इथाइल के साथ लगा दें तो वो हो जाएगा 1 ब्रोमो इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये आ रहा है, ये आपके पास कुछ बेंजीन के स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन के साथ। सो अगर आपके पास 2 कार्बन हो, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा कॉमन नेमिंग के अंदर 1 कार्बन वाला फॉर्मा था, 2 कार्बन वाला एसिटा था, इसी तरह वी हैव अ 2 कार्बन कीटोन, सो इट इज़ एक्चुअली एसीटोफिनोन, ये नाम है इसका। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ बेंजोफिनोल, फिनोन। डाईफिनाइल कीटोन भी ठीक है, डाईफिनाइल बिकॉज ये 2 इनको फिनाइल कंसीडर कर रहे हैं और ये कीटोन कह रहे हैं, तो ये भी ठीक है, डाईफिनाइल कीटोन भी ठीक है। और बेंजोफिनोन आईयूपैक नेम में आ जाएगा और डाइफिनाइल कीटोन कॉमन में आ जाएगा। एसीटोफिनोन और मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल एंड दिस वन कीटोन, ठीक है। एंड दिस इज़ डाईमिथाइल कीटोन और एसीटोन, ये दोनों कॉमन नेम है इसके, ठीक है। सो दीज आर द IUPAC naming of ketones, and this is for your practice, so make a practice of it, nomenclature of aldehydes and ketones, and plus I have discussed bit of the carboxylic acid. So that's all about today. Allah Hafiz.